nationwide goods and service tax will be rolled out on July 1st, July. It is one of the world's biggest single markets, making commodities cheaper. Okay, making commodities cheaper and tax evasion difficult. By reducing tax cascading, it will boost competitiveness, investment, and job creation. This comprehensive tax reform would help raise revenue to finance much needed social and physical infrastructure and promote corporate investment. GST that merges most of the existing taxes into single system of taxes will be the biggest tax reform post-independence. Once it is in force, GST will replace at least 70 state and federal taxes. The GST Council has approved for rate structure 5%, 12%, 18% and 28%, with most goods likely to fall in 12% and 18% rate. In addition, a cess will be levied on the luxury and same goods as well. The law provides a maximum GST rate of 20%, 20% central GST and 20% state GST. With the GST to be rolled out on 1st July 2017, the final phase of preparation for its implementation is in full swing. Just now I was briefed by Honorable Chief Commissioner that they are going to have a fire letter in Vietnam. So it's like a 31st December. First, and I was sharing that it's going to happen in Chennai, and so I said it's going to be JNCH. So I think for us it's going to be Diwali, sir. So that. Custom food has a major stake in the early implementation of GST would be levied on imports from the first day. The changes are broadly in the following areas. Levy on duties, integrated goods and service tax and compensation cess wherever applicable to be levied on imports. Change in the bill of entry and shipping with forms. To capture additional details required for rendition with goods and service tax. Next, in case of IGST refund, claim export or availability of IGST credit imports. It will be mandatory for the importers to declare their GST and their GST registration number on the bill of entry if they wish to claim the credit of IGST credit. On the importers not registered to GST will be required to declare their PAN along with their state code as per the census of India. Procedure in respect of manual filing to directly capture basic data and require validation with GST on imports and exports. Friends, as we all know that we are going to adopt GST tomorrow, I would like to give your attention to some global scenario. I think France was the first country to implement GST to reduce tax evasion. Since then, more than 160 countries have implemented GST. Some countries having dual GST, for example Brazil and Canada, etc. Model. India has chosen the Canadian model for dual GST. These are over 40 models of GST currently in use, each with its own distinct peculiarities. World over, GST rates are typically between 16% and 17%. In India, it is likely to be 6%. The tax rates under the proposed GST would come down, but the number of assessees would be likely to be increased by 5 to 6 times. GST that was considered merely a slogan and a tough to implement is an idea that has been around for 10 to 15 years. But the government has now built a consensus with all the states together. Millions of vouchers now being billed by taxpayers every month, and evasion will be difficult. A more efficient system will lead to higher tax buoyancy. Therefore, even with the lower percentage of tax, the government can afford to collect more. And friends, we feel fortunate, we are proud that yes, everybody is going to be in the festival, but as a custom broker, we have a lot of duty to perform. And on behalf of all of you, I have promised sir that we are all welcoming it, and sir, we are going to get your grant. Thank you. Jai Hind. Thank you, President.
Now I request our President to felicitate Honorable Shri Rajiv Tandon Ji, Chief Commissioner, Mumbai Zone 1, with floral. Honorable Shri Bani Bhattacharya Ji, Principal Commissioner General, Mumbai Zone 1. Honorable Shri Ramesh Chandra Ji, Commissioner Exports, Mumbai Zone 1. And Honorable Shri G.V. Biolika, Joint Commissioner Sales Tax. Thank you, President. Now I request Honorable Shri Rajiv Tandon Ji, Chief Commissioner, to brief us. Colleagues on the dais, members of the BCPA, ladies and gentlemen. It's a very, very proud moment for all of us. Less than 9 hours to go. The clock is ticking. And we take a flight to a new taxation system, which we've been dreaming of for more than a decade and a half. This is coming to be a reality. It's now no time to debate whether an ideal GST or an Indian GST, why GST, pitfalls, advantages, etc. We are there. We are at the cusp now of heralding a very, very important paradigm change in our taxation structure. Age needs to retire. The Central Excise Act 1944 is now close to 73 years old. It's almost getting retired, except for a few commodities. Service tax is also 1994. So these are all vintage era laws. And I think it's now time to shift on to something which is more robust and which is in tune, keeping with the modern day realities. Initiative taken by the continuing with this presentation. It's when we started the presentation for the start. And this is continuing to the custom brokers, which is a very So I will be dwelling on only the basic feature. WhatsApp पे एक 2-3 वीक से मैसेज चल रहा था बहुत जोरों शोरों से, आपने देखा होगा कि GST का थर्ड मोस्ट misunderstood and confusing था. First two I will not name, you everybody knows. इस पे I will not be saying anything, but sir is so GST सबसे confused and misunderstood नाम बोला गया है, but I hope that after my presentation you will understand what is GST. That's why we need this overview of GST, though it may not be directly affecting you. कुछ बाहर से आए, import हुए, हमारा काम भी खत्म और आपका काम भी खत्म हुआ। उसके बाद we will not bother. अब क्या होगा GST में? The whole supply chain is being taxed. Yeah? जब पूरी supply chain tax हो रही है, तो अभी import beginning हो. अगर आपने benefits of GST पढ़ा होगा, उस पर लिखा होगा GST. The whole supply chain from manufacture oblique import will be taxed. यानी कि कुछ आज बिके हैं यहाँ से लेकर के और जब तक कोई चीज कंज्यूम नहीं होगी तब तक पूरी ट्रांजैक्शन को हम लोग ट्रैक करेंगे। अभी क्या होता है
अभी आपने ये इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके इंपोर्टर को दे दिया, इंपोर्टर जो मर्जी करे, वो फेंक दे, जो मर्जी करे, आइदर वी आर बॉदर्ड नॉट यू आर। किया ना, इंपोर्टर ने 100 रुपये का इंपोर्ट किया, बाद में वो 2000 का बेचता है, 5000 का बेचता, ना अभिमान करता, ना अपमान करता। अब क्या होगा? अब पूरी सप्लाई चेन टैक्स, और जो इंपोर्ट होगा वो इंपोर्ट सिर्फ स्टार्टिंग है, एंड नहीं है। अभी तक क्या था? इंपोर्ट एंड था। अब इंपोर्ट क्या हो गया? जस्ट द बिगिनिंग। और यहां से लेकर के हम पूरी ट्रांजैक्शन जो भी गुड्स आएंगे लास्ट तक ट्राई करेंगे जब तक कि वो कंज्यूम हो। क्लियर ना? इसी का मीनिंग है कंजम्पशन बेस्ड। सपोज ये 100 रुपए गुड्स आए हैं, ये इस पे 20 रुपए टैक्स लग रहा है, कौन कौन सा टैक्स होगा? वो आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी में एसजीएसटी भी होगा, सीजीएसटी भी होगा। आईजीएसटी तो सीजीएसटी तो सेंटर के पास आ जाएगा, एसजीएसटी किसके पास जाएगा? महाराष्ट्र में इंपोर्ट हुआ, बॉम्बे के पार्टी ने इंपोर्ट किया, किसके पास जाएगा? नहीं जाएगा सर, महाराष्ट्र वाले बैठे हैं उनके पास कुछ नहीं जाएगा। बिकॉज हो सकता है जो इंपोर्टर होगा वो यहाँ दिल्ली भेज देगा, दिल्ली से गुजरात भेज देगा। ये है ना, जब तक कोई चीज कोई कंज्यूमर नहीं कर देगा तब तक अपन को नहीं मालूम चलेगा कि इसके ऊपर जो एडजस्ट था वो कौन से स्टेट के पास है। एंड दिस है डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर ऑल ऑफ यू। तो एप्लीकेशन से ज्यादा है कि हर बिल ऑफ एंटिटी आपको बताना पड़ेगा कि इंपोर्टर कहाँ का है। अगर इंपोर्टर राजस्थान का है और आपने गुजरात से दिया तो उसको एडजस्ट गुजरात को भेज देंगे, आप और इंपोर्टर आपस में लड़ते हैं। ये है ना, बिकॉज अब क्या हो रहा है? आईजीएसटी इंपोर्ट हो रही है, आईजीएसटी पेड हो रही है, आईजीएसटी में एचजीएसटी कंपोनेंट है, और हमको बोला गया कि जो एचजीएसटी कंपोनेंट है वो जहां का इंपोर्टर है वहां को भेजना है। ये अभी आप लोगों की रिस्पांसिबिलिटी जो है मेरी टाइम्स होगी। पहले क्या था? इंपोर्ट गुड्स क्लियर किए, ड्यूटी पे किया, भूल गए, आप भी भूल गए, हम भी भूल गए, वी वर नॉट बॉदर्ड। अब ऐसा नहीं है, अब तक कोई गुड्स इंपोर्ट हुए हैं, सप्लाई हुई है, जब तक वो फाइनल कंज्यूमर के पास नहीं चली जाएगी तब तक उनको यही नहीं मान पड़ेगा कि टैक्स किसके पास जाएगा। इसलिए हमारी मजबूरी है, हमको ट्रैक करना ही पड़ेगा। ये है ना, और आपकी भी मजबूरी है कि आपको बताना पड़ेगा कि इंपोर्टर कहाँ का है, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, दैट इज व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई, इंपोर्टर कहाँ का है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये कि आपके पास पार्टीज तो है, जैसे आपके पास एलएनटी है, एलएनटी 5 स्टेट में 6 स्टेट में केंद्रीय पूजा के पास रहती है एलएनटी है, तो आपके पास 10 स्टेट में एलएनटी काम कर रही है और वो 10 स्टेट में रजिस्टर हुई है। अभी तक आप सिर्फ एलएनटी देते हो, बिल फाइल देते हो, काम कर जाता है। अब क्या होगा? आपको देखना पड़ेगा एलएनटी कौन सी यूनिट है, कौन से स्टेट में माल जा रहा है, सो दैट कि उसी स्टेट का जीएसटी नंबर लिखो। अगर आपने दूसरे स्टेट का जीएसटी लिख दिया, सपोज गुजरात में यूनिट का दिल्ली का लिख दिया, ऐसा केजरीवाल के चला गया, वहां से वापस नहीं आएगा। तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपको जिस स्टेट का जीएसटी नंबर है वो जीएसटी नंबर लिखना ही पड़ेगा। तो आपके अपने सिस्टम, आपके अंदर जो लड़के काम कर रहे हैं उनको कल से पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, पूरा बताना पड़ेगा कि हर इंपोर्ट में अगर एक कंपनी 2-3 स्टेट में रजिस्टर्ड है, आपको बताना पड़ेगा कि कंपनी कहाँ का रजिस्टर्ड है, कौन सी यूनिट इंपोर्ट कर रही है, और जो यूनिट इंपोर्ट कर रही है उस स्टेट का ही जीएसटी नंबर लिखना। अगर आपने कुछ और कर दिया, इट इज दैट एप्लीकेशन फॉर यू। इंपोर्टर या तो आपसे काम चला जाएगा या आपके पीछे पड़ा रहेगा। क्लियर? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है? पूरी सप्लाई में जो इंपोर्ट्स है वो फर्स्ट सबसे पहले होगा और उसके बाद ही आपका काम चालू होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज पूरी सप्लाई चेन को टैक्स कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जीएसटी क्या है? मल्टी स्टेज कलेक्शन मैकेनिज्म। मल्टी स्टेज कलेक्शन मतलब कि हर स्टेज में कलेक्ट करेंगे और पिछली स्टेज का क्रेडिट देंगे। अभी इंपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट तो फर्स्ट स्टेज है, तो इंपोर्ट में जो भी इंपोर्ट होगा उसमें जो भी टैक्स पे होगा वो आगे इंपोर्टर जब दोबारा सप्लाई करेगा उसका क्रेडिट लेगा। यहाँ फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने थोड़ी भी गलती कर दी तो क्रेडिट दूसरे के पास आ जाएगा। फिर आप एक देखो, सपोज आपने गुजरात की पार्टी दी एलएनटी और आपने दिल्ली कर दिया तो क्रेडिट कौन लेगा? ये नीड टू बी अलर्ट फ्रॉम डे वन। अभी तक आप क्या करते हो? अपना काम करते रहते हो, इनवॉइस बनाते रहते हो, बिल बनाते रहते हो, साल के एंड में सीए, महीने के एंड में सीए को बुलाया, डॉक्यूमेंट किए, कुछ इनवॉइस गलती है उसे आपने टिकट दी, राइटिंग लगा दिया, कुछ कर दिया, बाद में आपको अब आपका जो काम है वो एक तारीख से चालू है। जो आपका रिटर्न फॉर्मेशन है वो 1 जुलाई से। तो व्यूज चेंज, आपका जो बिहेवियर है, वर्किंग है, उसमें सब कुछ चेंज होने वाला है। क्या आपको कस्टम से क्या क्या काम है? एक तो ये है कि जब इंपोर्टर इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करके जब वो आगे बेचेगा तो क्रेडिट, एक चीज तो हो गया क्रेडिट, उसका इंपॉर्टेंस है। दूसरा क्या होगा कि जब इंपोर्टर एक्सपोर्ट करेगा, जब इंपोर्टर ने एक्सपोर्ट किया तो जो भी टैक्सेस पे होते हैं उसको वापस चाहिए। तो जो भी आईजीएसटी हुआ है या इनपुट्स हुआ वो सारे टैक्सेस वापस। कैसे वापस होंगे? आपका क्या ड्यूटी है, उसमें आपको क्या काम करना है वही अपन डिस्कस। ये
सबसे पहले अपन एक्सपोर्ट की बात करते हैं, फिर अपन इंपोर्ट में ठीक है। एक्सपोर्ट में सबसे पहले क्या है, ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देती है, बड़ा सिंपल सा काम है। आपके पास एक ड्रॉबैक रूल है, कोई भी चीज एक्सपोर्ट होती है, आप ड्रॉबैक रूल में देखते हो, जो रेट लिखा होता है वो देते हैं। हम लोग वही करते हैं, आपके पास ड्रॉबैक रूल आप देखते हो, फला शर्ट एक्सपोर्ट हुई, शर्ट में 12% ड्रॉबैक है, आप शिपिंग पेमेंट डाल देते हो और हम उसका एक्सपोर्ट ड्रॉबैक करते हैं। दिस इज इसको बोलते हैं प्रिजेंटिव। प्रिजेंटिव का मतलब होता है प्रिज्यूम कर लेना, हम कभी वेरीफाई नहीं करते कि आपने टैक्स पे किया है या नहीं किया ना। एक शर्ट एक्सपोर्ट करी, एक्सपोर्टर ने बोला कि ये शर्ट जो है 400 की एक्सपोर्ट कर रहा है, आप शिपिंग में फाइल कर देते हो, हम बोलते हैं शेड्यूल में लिखा हुआ 12% ड्रॉबैक है, हम आपको पूरा 12% देते हैं। इसका मतलब सिंपल प्रिज्यूम कर रहे हैं कि जिसने भी शर्ट बनाई होगी उसने कुछ ना कुछ टैक्सेस पे किए होंगे, उसने नहीं पे किए तो सारे उसकी प्रॉफिट उसके पॉकेट में गए। इनफैक्ट सारी की सारी जो ड्रॉबैक स्कीम्स है, नॉट ओनली ड्रॉबैक, सारी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स है, सब की सब प्रेजेंशन पे साइन नॉर्म, एडवांस ऑपरेशन, ईओयू, टीसी जितनी भी हैं सब की सब इसी प्रेजेंशन में है कि हर जगह जीजीएफटी जो है प्रिज्यूम कर देती है कि अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो उसके टैक्सेस पे किए होंगे, इतना तो रॉ मटेरियल यूज किया होगा, उसके बेसिस पे सारा बेनिफिट। ठीक है ना, ड्रॉबैक पे सब में वही है। अब क्या हो रहा है, जीएसटी में सब चीज क्यों, क्योंकि हम पूरी सप्लाई चेन को टैक्स कर रहे हैं। जब हम पूरी सप्लाई चेन को टैक्स कर रहे हैं, ये कुछ इंपोर्ट हो गए या मैन्युफैक्चर हुए, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, लास्ट में जब भी बिके अपन को हर पॉइंट पे मालूम है कि इसकी टैक्स वैल्यू क्या है और इकोनॉमिक वैल्यू। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है कंज्यूमर के लिए वो ये है कि जब भी वो सामान खरीदेगा तो खरीदते मालूम चलेगा कि इसमें कितने टैक्स वैल्यू और कितने इकोनॉमिक। आप पेट्रोल फेंकते हो 65 रुपए का होता है, आपको नहीं मालूम उसको कितना टैक्स है कितना क्या है, तो कभी जीएसटी में है ही, बट अदरवाइज कोई भी चीज पूरी सप्लाई चेन में किसी भी पॉइंट पे आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें कितने टैक्सेस दो। That means at any point of time in the whole supply chain, tax value and economic value will always remain separate, clearly identifiable and clearly quantifiable. अभी quantify हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? Suppose ये कुछ एक्सपोर्ट हो रहे हैं, अगर ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं, मैं क्वांटिफाई कर लेता हूँ कि इसमें कितनी जीएसटी पे हुई है, तो मैं वही वापस कर दूँ। जो ड्रॉबैक में प्रेजेंटिव है, साइन नॉर्म्स है, एडवांस ऑपरेशन नॉर्म्स, सब की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है ना, यही होने वाला है। अब हो क्या है, सिर्फ सप्लाई चेन इंडिया में हो रही है, पूरी ट्रैक कर रहे हैं, उसमें आईजीएस की पूरी ट्रैक हो रही है, बीसीडी नहीं हो रही है, जो बेसिक फैसिलिटी होता है क्रेडिट भी मिल रहा है। इसलिए अब क्या होगा, ड्रॉबैक में क्या होगा, ड्रॉबैक सिर्फ बीसीडी का होगा। चलिए अभी आपका ड्रॉबैक शुरू क्या होता है, ड्रॉबैक शुरू में दो चीज होती है, अगर सर्वर क्लेम किया और अगर सर्वर क्लेम नहीं किया होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर सर्वर क्लेम नहीं किया तो आपको कस्टम्स पार्ट और एक्साइज पार्ट दोनों मिल जाता है ना। अगर लिखा हुआ है कि सर्वेंट क्लेम नहीं किया और किया तो आपको सिर्फ कस्टम्स पार्ट मिलता है ना। अब जीएसटी में क्या होगा, आपको सिर्फ कस्टम्स पार्ट मिलेगा। अभी इसमें हुआ क्या है, फरवरी में सीबीसी ने अलर्ट इशू किया, सारे आप लोगों को भी लेटर गया होगा, सारी जितने भी काउंसिल से सबको लेटर भेजा, आप एडवाइस करो कि जीएसटी आने के बाद ड्रॉबैक रूल कैसा होगा। ये कमेटी बैठी हुई है, अभी तक ड्रॉबैक रूल आएगी, आ जाएगी, अभी जल्दी भी नहीं है, हमेशा लेट ही आता है। तो जरूरत नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि जब ड्यूटी रेट चेंज होते हैं उसके बाद तो डिटरमाइन करोगे कि इनपुट पे टैक्स कितना है, पहले कभी आ भी नहीं सकता। हमारा बजट 28 तारीख को आता है, उसके बाद गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है कि इनपुट पे कितना टैक्सेज होगा। वैसे यहाँ पर हुआ है, जीएसटी के रेट अभी आए हैं, अब एम्पिरिकल स्टडीज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कितने टैक्सेस पे होंगे, उसके हिसाब से देखेंगे ड्रॉबैक देना ही नहीं, तो ड्रॉबैक तो भी आ ही जाएगा 2-4 दिन में। बट बेसिक थीम क्या है, आईजीएसटी जो है पूरा वैसे ही आपका